Okay, hello everyone. Okay, please mute yourself. Nobody will unmute until I say. We will have a doubt session in last 15 minutes. So this is Navin Pardeshi in Nashik. I am going to start a foundation course on Narayana e-Techno syllabus. So are you all ready with me? Yeah, your mic is. Yeah, please switch off your mic. Do not open until I finish my lecture. After I finish my lecture, I will have a conversation with you. We will solve all the doubts in that lecture. चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स. चलो अभी हमको क्या करना है. पहले तो हमने वेक्टर का बेसिक सब कुछ पढ़ लिया है. We will directly start with the questions. Without wasting any time, I am going to start with question and answers. So please open your Narayana Techno mathematics book. Sorry, physics book. Page number 18. Are you with me? Everybody must have their books with them. Okay, let us start. Worksheet 1. Question number 1, CUQ. I am reading the question. Please listen to it carefully. If a vector is rotated through an angle other than multiple of dash, it changes. The question is, if there is a sine theta, okay, if there is a vector, let the vector make an angle theta with the x-axis, with the positive direction of x-axis, then how much this vector should be rotated that its value remains unchanged. So as we know, if I rotate this vector to its fullest, that is by 2 pi radian or 360 degree, the magnitude as well as the direction of vector will remain same. So it will make no change if we rotate it by 2 pi degree, 2 pi radian or 360 degree. We can also rotate it by 4 pi, 6 pi, 8 pi in the multiples of 2 pi. Or in the multiples of 360 degree, we can rotate the vector. So option, which option is the correct? Option number 3, 2 pi or 360 degree. If we rotate the vector by 2 pi or 360 degree, the value of vector remains unchanged. Question number 2. Examples of a fixed vector is. Examples of a fixed vector is. First is position vector, second is displacement vector, third is both 1 and 2, fourth is none. Okay, so as we all know, position vector and displacement vector, they both are called as fixed vectors. So option 3, both 1 and 2, position vectors and displacement vectors both are fixed vectors. Question number 3, if the two vectors from a point are drawn such that their arrowheads should be away from that point, the angle obtained in this way is. Let us take the two vectors. They are joined such that their arrowheads are away from that point. The angle made in between the two vectors is called as option 1, null vector, option 2, angle between the two vectors, option 3, fixed vectors, option 4, non-coplanar vector. So actually it is called as angle of vector. Angle of vector. Always remain, angle of vector is theta. Always remember, angle of vector is theta. And what is that theta? Theta is the angle between the vectors when vectors are joined by tail to tail, or you can also join these two vectors by using head to head combination. Still this angle made between the vectors is called as angle of vectors. तो हमको अगर दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल निकालना है तो जरूरी है टेल टू टेल ज्वाइन करें या हेड टू हेड ज्वाइन करें. ये होता है हेड, जहां पे एरो हो उसे कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर, और जहां पे पॉइंट होता है उसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर. तो अगर दो वेक्टर को मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूं या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करूं तो उनमें का जो भी एंगल है उनको हम कहेंगे एंगल ऑफ वेक्टर.
नंबर 4, अच्छे से देख लो क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपको भी क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं तो ये ऑनलाइन लेक्चर जो है वेस्ट जाएगा। यू मस्ट रीड व्हेन आई रीड। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इफ दे आर ऑर्थोगोनल? ओके, लेट अस ड्रॉ टू वेक्टर्स। उन्होंने कहा है कि दो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो ये एक मैंने वेक्टर निकाल दिया और उसको ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया। ये दो वेक्टर्स हैं, अब इनके बीच में का एंगल क्या होगा? तो एंगल ऑफ वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर्स को मुझको हेड टू हेड ज्वाइन करना है या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो मैं ये जो वेक्टर है इसको ए नाम देता हूं, ये वेक्टर को बी नाम देता हूं। ये वेक्टर ए को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज माय वेक्टर ए, और वेक्टर बी जो है उसको टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला दिया। अब टेल से टेल मिलाने के बाद में दो वेक्टर के बीच में का एंगल क्या बन रहा है? यस, 90 degree. So when two vectors are orthogonally projected, their angle is 90 degree. The angle between the vectors is 90 degree. अगर यही मैं कह दूं two vectors are two vectors are coplanar, what can be the angle between them? कोप्लानर तो दो वेक्टर्स हो सकते हैं और उनके बीच में का एंगल 0 to 180 होता है। 180 से बड़ा हो सकता है क्या कोई वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हमको बस ये सोचना है क्या दो वेक्टर के बीच में का एंगल 180 से बड़ा हो सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन। थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्या दो वेक्टर के बीच में का एंगल 180 से बड़ा हो सकता है? जस्ट सी दैट, जो दो कोप्लानर वेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या दो कोप्लानर वेक्टर्स के बीच में का एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ। एक वेक्टर की कीमत कब बदलती नहीं है? when the vector is not changed, when the vector is not changed, इसके लिए हमको समझना जरूरी है what actually a vector is। एक वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है? वेक्टर, वेक्टर दो चीजों से बना हुआ है, एक होता है डायरेक्शन, थीटा ही कह सकते हैं ना, एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी वैल्यू। 5 सेंटीमीटर का वेक्टर है, 10 सेंटीमीटर का वेक्टर है, 5 न्यूटन का वेक्टर है, 10 न्यूटन का वेक्टर है, वो वेक्टर की वैल्यू और किस डायरेक्शन में लगा है वो होता है एक्स डायरेक्शन। तो ये दो चीजों से एक वेक्टर बना है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे कि क्या बदलने से वेक्टर नहीं बदलता। A vector is not changed if option 1 it is rotated through an arbitrary angle। एंगल बदलने से वेक्टर बदलेगा? बदलता है, पहला ऑप्शन गलत। एंगल बदलने से तो वेक्टर बदलेगा, है ना। सेकंड, इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर। ओके, अगर एक वेक्टर है, पकड़ लो, मैं लिख देता हूं 2i plus 3j। अगर मैं उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेटेस्ट से मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6i plus 9j। क्या बदला उसका? मैग्नीट्यूड बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाता है, तो ये भी गलत है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद में वेक्टर बदलता है। नेक्स्ट, इट इज अ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एक नया कंसेप्ट है। अगर मैं किसी वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं एक यूनिट वेक्टर से, तो क्या उसकी वैल्यू बदलेगी? देखिए, कोई भी एक यूनिट वेक्टर ले लो, i इज अ यूनिट वेक्टर, सही है क्या? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर मतलब उसको बस डायरेक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या i का मैग्नीट्यूड 1 है? मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको? यहाँ पे बस एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है 1। I का मैग्नीट्यूड है 1, so I is a unit vector। अगर मैं I को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 2i plus 3j,
ये दूसरा वेक्टर है, मैं उसको यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ये हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, स्टिल अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा नहीं है, डोंट वरी। बट क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो साइन थीटा आता है, साइन एंगल आता है। साइन एंगल कब जीरो होता है? जब दोनों के बीच में का एंगल जीरो हो, तो आई इंटू आई ये जीरो हो जाएगा। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कोई मायने नहीं रखता, कौन मायने रखता है? आई इंटू थ्री जे, आई क्रॉस थ्री जे करना है, और आई जे का के हो जाएगा, वो बनेगा थ्री के। हम आगे देखेंगे ये कैसे बनता है, we will see how the cross product is formed, but still क्रॉस प्रोडक्ट कर देने से कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर मैं किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो उसका आंसर वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा, सो दैट इज नॉट द केस। जब भी हम किसी वेक्टर को किसी और वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब वो वेक्टर बदल जाता है। आखिरी ऑप्शन है इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर मैं कोई भी वेक्टर ले लूं, सपोज ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं ले लूं 5 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा मैंने बोर्ड बनवा लिया, ठीक है, मैंने एक बोर्ड बनवा लिया 5 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब मैं इस बोर्ड को कहीं भी जाके रख दूं, है ना, नॉर्थ पोल पे जाके रख दूं, साउथ पोल पे जाके रख दूं, कहीं भी मून पे जाके रख दूं, ये बोर्ड सेम रहेगा अगर मैं इसको पैरेलल सरकाता हूं तो। ये मैं बोर्ड को कहीं भी अगर रख देता हूं जैसे कि वैसा, स्टिल उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और पैरेलल सरकाने की वजह से उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक बॉडी है, ये आगे काम में आएगा एग्जांपल, इसलिए मैं बता रहा हूं। सपोज देयर इज अ ब्लॉक एंड ऑन दैट ब्लॉक मैंने यहां से फोर्स लगाई है 5 न्यूटन। क्या मैं इस ब्लॉक को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे मैंने वो ब्लॉक रख दिया और उसको 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, यहां पे ढकेल रहा था, यहां से खींच रहा हूं, दोनों सेम है क्या? हाँ सेम है, क्योंकि मैंने उसको पैरेलली सरका दिया है बस, बाकी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखा है मैंने वेक्टर का, तो दोनों वेक्टर्स सेम है, दोनों डायग्राम सेम है। यू कैन डू दैट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जाते हैं हम, अ वेक्टर पैरेलल टू ए एंड हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ बी इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन अलग है। एक वेक्टर है, देयर इज अ वेक्टर, लेट अस उस वेक्टर को नाम दे देते हैं, देयर इज अ वेक्टर x। वो वेक्टर कह रहा है कि पैरेलल टू a है, वो वेक्टर इज पैरेलल टू a and same magnitude as that of b, magnitude of b। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, पैरेलल टू a मतलब a की डायरेक्शन, a की डायरेक्शन x की डायरेक्शन को सेम होगी, क्योंकि a x को पैरेलल है, तो जो x की डायरेक्शन होगी वही a की भी डायरेक्शन होगी। तो यहां पे मैं a का यूनिट वेक्टर ले लेता हूं, देखो मैंने यहाँ पे a का यूनिट वेक्टर ले लिया है, यूनिट वेक्टर को मैंने ऊपर कैप से डिनोट किया है, a कैप। a कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ a, यूनिट वेक्टर का ही मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ a, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ a, डायरेक्शन ऑफ a, डायरेक्शन ऑफ a का ही मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ a। अब बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो बस आप b लिख दो, या तो आप लिखो b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ b को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक तो ऐसे, नहीं तो सिर्फ b लिखकर। तो हमारा आंसर ये दो आ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू यूनिट वेक्टर a या फिर b इनटू यूनिट वेक्टर a। वहां पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर
2 सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छे से समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड करने वाला हूँ, इसको रिपीट अच्छे से देख लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप है ना YouTube का वीडियो जैसे के वैसा देख सकते हो, कितने भी स्लो मोशन में देखो, यू कैन सी इट। अगला हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1। लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 1 to 3 मीटर। Starting position of particle is 1 2 3 meter. Let the position be A. A से start हुआ है वो, from 2 6 5 4, यहां से गया B तक 6 5 4, है ना। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B है। कोई एक पॉइंट है जो A से B के तरफ गया है। अब देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर कोई वेक्टर A से B की तरफ गया है तो याद रखना हमको डिस्टेंस AB निकालना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताता हूं बट ये कांसेप्ट याद रहेगा आपको। आपको डिस्टेंस AB निकालना है, डिस्प्लेसमेंट AB निकालना है। तो क्या करोगे? हमेशा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, A माइनस B नहीं करोगे, B माइनस A करोगे। AB इज इक्वल टू B माइनस A, हमेशा याद रखना। AB इज इक्वल टू B माइनस A से B तक गया तो B माइनस A करोगे, A से B तक गया B माइनस A करोगे, याद रखना। तो B की वैल्यू है 654, इसका मतलब 6i प्लस 5j प्लस 4k, ये हो गया हमारा वेक्टर B। यहां देखो, यहां देखो, मैंने बस i j k उसके अंदर ऐड कर दिया है। हमको कंसेप्ट सीखने हैं, हमको बस आंसर नहीं निकालना है। वी नीड टू सी द कंसेप्ट्स। अब मैं माइनस ए वेक्टर करूंगा। ए क्या है वेक्टर? ब्रैकेट में लिखेंगे i 1 into i प्लस 2j प्लस 3k। बस सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ नहीं। i से i मिलाओ, 6i माइनस i, 5j माइनस 2j, 4k माइनस 3k। इसके ऊपर कैप आप खुद लगा लो, ठीक है। आई जे के ऊपर कैप रहता है, मैं अभी नहीं लगा रहा हूं। 6i माइनस i, 5i, 5 माइनस 2, 3j, 4 माइनस 3k। दैट्स योर आंसर। गलती से भी a माइनस b मत कर देना, हो सकता है एग्जाम में वो ऑप्शन आ जाए। दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन a टू b रखने के लिए हमेशा b में से a को माइनस करो। दैट इज योर फाइनल ऑप्शन। प्लीज टेक द ऑप्शन 5i plus 3j plus k, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे जाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मारते चलो या फिर रिवाइज कर लेना, यूट्यूब पे ये सब मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a is equal to 6i plus 2j plus 2k। a is equal to 6i plus 2j plus 2k, ये हमारा क्वेश्चन है और बोल रहे हैं इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना है, बस इसका ही यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसी की डायरेक्शन में होगा कि नहीं? निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर? बहुत टफ है यूनिट वेक्टर निकालना। ऐसे है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हमको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो याद रखना, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अंडर रूट में ले लो। पहले तो पूरा अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, j के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, k के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तीनों की एडिशन होगी। ठीक है, मैंने क्या किया? मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाला यहां पे। सर आपने मैग्नीट्यूड क्यों निकाल लिया? यूनिट वेक्टर निकालना था। थोड़ा रुको, हम निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं पहले। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स का, और उसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 4 24, अंडर रूट ऑफ 44 आ गया। ठीक है, अब
की कहानी कैसे होती है? वेक्टर ए बनता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो गया ए, डायरेक्शन हो गई ए कैप। मैंने कहा था ये ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, यही तो पूछा है। तो ए कैप की वैल्यू निकालने के लिए इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम डिवाइड कर देंगे वेक्टर ए से। ए कैप मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन वेक्टर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? 6i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 44 कर दो। ऑप्शन में दिख रहा है, देख लो। 6i अपॉन रूट 44, 2j रूट 44, 2k रूट 44। यस, देयर इज ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो? हमने एक सिंपल सा लॉजिक यूज किया। वेक्टर ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मैग्नीट्यूड निकाल लिया, है ना? और ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमको पूछ ही रही थी। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दिया वेक्टर को, और आ गया हमारा आंसर। खुद करके देखो, नोटबुक खोल के रखो, ठीक है? जब भी टाइम मिले खुद से ट्राई करके देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equal to 6i minus 3j plus 2k, if a is equal to 6i minus 2j plus 2k and b is equal to 7i plus 24j and b is equal to 7i plus 24j, then कहां गया है? मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं? क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, 6i minus 3j plus 2k सही है, minus 3j plus 2k। 6i minus 3j plus 2k is a given vector, then the unit vector in its direction is given। ये तो कर सकते हो। अब यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका ये लिख दो जैसे के वैसा, ये वेक्टर लिख दो और इसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर कैसे मिलेगा? 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49। अंडर रूट ऑफ 49 क्या आएगा भाई? 7 आएगा। निकालो मैग्नीट्यूड की, निकाल के दिखाओ। चलो ये 7 कैसे आया मैं बता देता हूँ। 7 ऐसे आया, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो आता है अंडर रूट ऑफ 49, वो होगा प्लस और माइनस 7, बट मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस 7 आया। ओके, ऐसे 7 आ रहा है। नेगेटिव साइन क्यों नहीं ली सर आपने? अरे 3 जो है, -3 का स्क्वायर लोगे तो भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर लोगे तो भी 9 आएगा, तो मैंने यहाँ पे साइन नेग्लेक्ट कर दिए। ओके, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ मत बोलो, म्यूट रहो, मैं टाइम पे आपका डाउट सेशन लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a is equal to 3i plus 4j, a is equal to 3i plus 4j, b is equal to 7i plus 24j, b is equal to 7i plus 24j, क्या बोल रहा है? The vector have same magnitude as b and parallel to a। इसका मैग्नीट्यूड है और इसको पैरेलल है, मतलब इसकी डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ए की डायरेक्शन क्या होगा? निकालो भाई, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। निकालो, 3i प्लस 4j, डायरेक्शन ऑफ ए बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ए का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, 5 आया। यह आ गया मेरा आंसर, ए कैप।
अब बोल रहा है बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब बी का बस मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आएगा 7 7 जा 49 और 24 का स्क्वायर आएगा 4 4 जा 16, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 17, 1 2 to the 4 5 576, 576। ओह बड़ा आंसर आ रहा है बी का मैग्नीट्यूड। करो एडिशन करो, 6 प्लस 9 15, 1 7 12 6 625। भाई ये किसका स्क्वायर रूट है 625? इसी तरीका है 25 जो है उसका स्क्वायर रूट ले लो, 5 आ जाएगा। और 6 है 2 into 3 तो छोटा नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर आएगा 625, तो 625 का स्क्वायर रूट 25। तो मैग्नीट्यूड आ गया 25 और डायरेक्शन आ गया 3/5y प्लस 4/5j। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मिल जाएगा। तो a कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, a कैप क्या आ रहा है 3i/5 प्लस 4j/5 इनटू 25। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 है 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 59 प्लस 20j देखो आंसर है। हाँ ऑप्शन नंबर 1 59 प्लस 20j। कैसे आया फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ध्यान से देखो, वो कहा उसने कहा कि a का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ले लो और b का मैग्नीट्यूड ले लो। a की मैंने डायरेक्शन निकाली, कैसे वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a को सॉल्व करो, b का मैग्नीट्यूड निकाला अंडर रूट ऑफ i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था, 25 आ गया। बस अब ये b को और a कैप को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सिंपल स्टेप्स है, बार बार रिपीट करके देखोगे तो इजी जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर करियर। तो ध्यान से देखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मल्टी करेक्ट चॉइस। तो बोल रहा है a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये है a। देन तो बताओ इट्स मैग्नीट्यूड इन yz प्लेन इज 5। पहला ऑप्शन बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड 5 है। चेक कर लो भाई, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखते जाएंगे, इधर चेक करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 29 है। भाई 5 किधर से आया, रॉन्ग, मल्टी करेक्ट में रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है अगला देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड इन zx plane is 2√5। ओह सेकंड, मैग्नीट्यूड इन zx plane is 2√5। भाई zx प्लेन में वेक्टर क्या होगा, तो zx प्लेन z में होता है 4k, x में होता है 2i। यह है zx प्लेन में वेक्टर इन zx प्लेन। zx प्लेन में ये वेक्टर मिला, zx प्लेन बोला मतलब x ले लो 2i, x मतलब 2i, z ले लो 4k, तो 2i प्लस 4k मैंने ले लिया zx प्लेन में। अब उसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट ऑफ 20 आ रहा है, 2√5 कैसे आएगा देखते हैं। 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 4 5 है ना, 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 आएगा, तो 2 बाहर अंडर रूट ऑफ 5। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेट अस चेक ऑप्शन नंबर 3। बोल रहा है zx प्लेन में मैग्नीट्यूड 5√5 है। ऑप्शन रूट 3 बोल रहा है मैग्नीट्यूड इन zx प्लेन इज 5√5, जो कि हमने
हमने अभी निकाला गलत है। ऑप्शन नंबर 4, इट्स मैग्नीट्यूड इन YZ प्लेन इज 10। मैग्नीट्यूड इन YZ प्लेन, मैग्नीट्यूड इन YZ प्लेन क्या बोल रहा है? 10। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी, 10 है क्या मैग्नीट्यूड इन YZ प्लेन। अब मैग्नीट्यूड इन YZ प्लेन अगर मैं चेक करूं तो YZ प्लेन में वेक्टर क्या आएगा? YZ माइनस 3J प्लस 4K, है ना। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो आएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16, या तो आएगा 16 प्लस 9 25 और आएगा 5। तो 10 बोल रहा है, रॉन्ग है, मल्टी करेक्ट है ही नहीं है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है सही? ओके, इरेज करता हूं, थोड़ा स्लो करके देख लो, बाद में YouTube पे मैं अपलोड करने वाला हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसे अपलोड करूंगा तो सबको वीडियो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, सब देख रहे हैं ना? रीड करो, छूट मत जाना, ठीक है। ये ऑनलाइन थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर छुट्टियां चल रही है, थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ना, बुक पास में रखना, नोटबुक पास में रखना, जो क्वेश्चन बोलूं वो क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब चल रहा है पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 6। 20 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच में का एंगल है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, then which of the following is correct representation for this? अरे यार, तो भाई यही तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर ये आप करेक्ट रिप्रेजेंट, एक तो टेल टू टेल जोड़ना होना चाहिए या फिर हेड टू हेड जोड़ा होना चाहिए, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? ऐसे रिप्रेजेंटेशन अगर हुआ तो 60 नहीं आएगा। देखो ध्यान दो, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120, तो ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये तीनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, चेक कर लो। तीनों नहीं, यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन 4 इज आल्सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। मेरा पेन लाइट हो गया। ऑप्शन 4 भी करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे दिया है उसने 60 डिग्री, ये भी करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। बाकी है क्या? नहीं है। ओके, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। आगे चलते हैं, समझ रहे हैं ना? टेल टू टेल जोड़ना है, हेड टू हेड जोड़ना है, बस एंगल 60 आना चाहिए। अगर टेल टू हेड नहीं जोड़ा है तो एंगल 120 आना चाहिए, सिंपल। कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेता हूं एक बार। द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आर डिनोटेड बाय i, j and k। कैप सही है, हमेशा यही होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग x i बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग y j बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग z k बोलते हैं। तो these are orthogonal unit vectors। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, x y z तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और वेक्टर ट्रायड भी कहते हैं इसको। A unit vector specifies the direction and whose magnitude is equal to 1 unit। एक्चुअली ऐसा होता है, वो इस डायरेक्शन में ले लो x, इस डायरेक्शन में ले लो y, तो ये डायरेक्शन होगी 3D में है ये z। तो जो x के अलाउंग वेक्टर होगा हम उसको i से डिनोट करेंगे, जो y के अलाउंग होगा j से करेंगे, जो z के अलाउंग होगा k से करेंगे। और ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ ऐसे। अगर मैं आपको पेन से दिखाऊं, परपेंडिकुलर दिखता है कि नहीं वीडियो में? ये देख लो, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ है 1 यूनिट। ओके, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को।
1 यूनिट उसकी लेंथ है। क्वेश्चन दिया है a vector of magnitude 9 unit along the negative z axis is, भाई z axis के along 9 यूनिट, तो 9 दिया है, डायरेक्शन क्या है k, तो 9 क्या आएगा हमारा पहला ऑप्शन। z axis के along k बोलेंगे, 9 यूनिट है इसलिए 9 लिखेंगे, 9k is our first answer। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन 4 9k, -9 नहीं आएगा, ठीक है, उसने क्या कहा है along नेगेटिव z, सॉरी -9 क्या आएगा, नेगेटिव z बोला है, नेगेटिव z, तो उल्टी दिशा में नेगेटिव z बोला है इसलिए -k लगाएंगे, 9 मैग्नीट्यूड आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट a vector of 5√2 in yz plane, 5√2 in yz plane, इधर है yz plane, इस प्लेन में आएगा वो, इस प्लेन में आ रहा है yz प्लेन में, yz प्लेन में j भी आएगा k भी आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, मैग्नीट्यूड है 5, मैग्नीट्यूड है 5√2। ऐसा वेक्टर बताओ जो yz प्लेन में है और मैग्नीट्यूड है 5√2, yz प्लेन में x 0 आता है, पहले तो x को एलिमिनेट करते हैं, x का जो जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 8 में उसको एलिमिनेट कर दो। देखो ऑप्शन 2 एलिमिनेटेड 5i + 5k एलिमिनेट, ऑप्शन 3 एलिमिनेट 5i एलिमिनेट, ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 1। बट लेट अस सी उसका मैग्नीट्यूड 5 आता है क्या, 5j + 5k, ऑप्शन है 5j + 5k, बचा हुआ ऑप्शन है ये, yz प्लेन में जो भी वेक्टर होगा उसका i 0 आएगा, i का कोएफिशिएंट 0 आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बचा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। भाई मैग्नीट्यूड निकाल लो, 25 का स्क्वायर रूट 5, अरे आ गया 5√2, तो यस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन गलत है। मैट्रिक्स मैच टाइप, ये तो बहुत ही इजी है, मैट्रिक्स मैच टाइप इज द इजीएस्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। पहला क्या है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं जो एक प्लेन में हो, तो सेम इनिशियल पॉइंट सेम टर्मिनल पॉइंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन सही है, एक सेम प्लेन पे लाई करता है। ऑप्शन बी को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका टेल टू टेल से जुड़ा हो, सेम इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट आएगा। को टर्मिनल वेक्टर सेम टर्मिनल पॉइंट, हेड से हेड जुड़ा होगा उसको तो को टर्मिनल वेक्टर कहेंगे, टेल से टेल जुड़ा होगा उसको को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ये दो वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर ये है दो को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, वर्ड्स को याद रखो, को इनिशियल को टर्मिनल, क्योंकि एक वेक्टर में हम इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा था इसको टेल इसको हेड कहो, इसको इनिशियल इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, जो कोलिनियर वेक्टर जो एक लाइन पे हो या फिर जो पैरेलल हो, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर एक लाइन पे, को मतलब सेम, लीनियर लाइन पे। ओके अभी अब तक अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। नो 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 वी स्टिल हैव 10 मिनट्स रिमेनिंग ना for doubt session. Okay, let us finish this, then integer type question, let us finish two more questions and then go for doubt sessions. Integer type question, if 0.5i plus 0.8j plus ck is a unit vector, then c is 0.5i plus 0.8j plus ck, ये बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सपोज एक वेक्टर है a, बोल रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, a is not a vector, it is a unit vector। यूनिट वेक्टर की क्या खासियत है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो चलो भाई निकालो मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25, 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64, c का स्क्वायर रहने दो, इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1। तो स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का आएगा समथिंग, तो ये आएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। 0.64 प्लस 0.25 कितना आता है, 98, 0.89। सही कर रहा हूं क्या मैं? हाँ सही तो है। ओके, अब 1 माइनस 0.89 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या 11 आएगा, 11 आएगा। अब c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.11 हो सकता है, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.11 आने दो, अपना क्या आंसर आ गया, अंडर रूट ऑफ 0.11। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तुरंत देख लो एक बार, कहीं गलती है तो पकड़ो, माइनस करके देख लो। 1 माइनस 0.89, ओके सही है, आगे चलते हैं। देखो वीडियो जब मैं इसके डालूंगा ना, तो वीडियो क्या करना, एक एक क्वेश्चन होने के बाद में पॉज करना और खुद से करके देखना आ रहा है क्या, तभी इसका फायदा होगा। नहीं तो वीडियो को फायदा नहीं होगा कि बस देख रहे हो बेड पे सोते सोते। हाथ में पेन लो, नोटबुक लो, जगह को अच्छे से साफ करो और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखो, फिर उसको पॉज करो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट 1, इफ द टू वेक्टर्स a b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर है, बोल रहा है a और b, ठीक है। a ऐसा दिखता है, b ऐसे दिखता है, बोल रहा है दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, a भी 5 सेंटीमीटर का है, b भी 5 सेंटीमीटर का है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। देन ईच वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर, मतलब a इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। हाँ तो सही बात है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग है तो उसका नेगेटिव वेक्टर आता है, a इज इक्वल टू माइनस बी। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, द टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब कोई मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, सपोज सी लेते हैं, डी लेते हैं, डी का मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन वो है, डी का मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन वही है, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर हो जाता है। क्या लिखा है, देन दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट। देखो लेवल 2 और लेवल 3 के जो क्वेश्चन है आज हो नहीं पाए, तो लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस क्या करेंगे, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। जब सॉल्व नहीं होता है तो हम उसके लिए अलग से लेक्चर लेंगे, इस रेगुलर सेशन में उनके लेक्चर्स नहीं होंगे। आप लेवल 2 और लेवल 3 के खुद से सॉल्व करोगे और सिर्फ उसके डाउट्स लेके आओगे मेरे पास। लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन के डाउट सेशन होगा, जो कि सिर्फ आधा घंटा चलेगा या फिर उससे भी कम हो सकता है। डाउट सेशन फॉर लेवल 2 एंड लेवल 3 हम आगे डिसाइड करेंगे जब आपका हो जाए लेवल 2 और लेवल 3 खुद से पढ़ के। मैं तो कहता हूं आज ही कर दो, अगर आज अपने लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट कर लिया तो हम तुरंत डाउट सेशन रख सकते हैं, ठीक है। ये सब ग्रुप में मैसेज करेंगे, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है तो ग्रुप में मैसेज करो, हम वहां पे डाउट सेशन रखेंगे। डाउट सेशन के पहले जरूरी है कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें, वीडियो अच्छे से देख लें, ठीक है। अभी के लिए कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। मैट्रिक्स मैच टाइप बोल रहे हो, तो मैट्रिक्स मैच टाइप में कैसा है, चार मैट्रिक्स टाइप मैच टाइप है। पहला को प्लानर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर मतलब बस एक प्लेन में चाहिए वो,
एक प्लेन में चाहिए वेक्टर। अब कोप्लानर वेक्टर, सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है, दिस बोर्ड इज वन प्लेन, तो इस बोर्ड पे मैं कितने भी वेक्टर निकाल सकता हूं और ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कोप्लानर है, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो इसको हम कोप्लानर का वेक्टर कहेंगे। जैसे कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे, है ना, वैसे कोप्लानर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। प्लेन क्या है, एक सपोज स्क्वायर है जो कि इनफाइनाइटली चारों दिशाओं से बढ़ रहा है, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, कोई भी प्लेन को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, दिस इज अ प्लेन जो कि चारों दिशाओं में बढ़ता जाएगा, दिस इज अ प्लेन। तो उस प्लेन में कोई भी वेक्टर ले लो, फॉर एग्जांपल और समझने के लिए देख लो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, क्या ये दोनों कोप्लानर है? देख लो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, एक ही प्लेन में है, बट अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल देता हूं, क्या अब ये कोप्लानर है? हाँ, फिर से वो एक कोप्लानर है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब भी वो कोप्लानर है। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो वो कोप्लानर है या नहीं वो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, बट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। सही है, देखते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो नॉन कोप्लानर होंगे। कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में लाई करता है। सेकंड है को इनिशियल वेक्टर। अब ये एक वेक्टर है जिसका ये होता है इनिशियल पॉइंट, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसको इनिशियल कहेंगे, इसको टर्मिनल कहेंगे। अब अगर मैं दो वेक्टर को उसके इनिशियल से जोड़ता हूं, मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर ले लिया ए, ये वेक्टर ले लिया बी, अगर मैं उसको इनिशियल से जोड़ रहा हूं तो ये दोनों वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अगर मैं कोई भी दो वेक्टर को टर्मिनल से जोड़ता हूं, हेड टू हेड, तो हम उसको को टर्मिनल वेक्टर्स कहेंगे। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसको कहेंगे को इनिशियल, इसको हम कहेंगे को टर्मिनल। आगे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे बस। सपोज मैं कोलिनियर वेक्टर निकालना चाहूं तो एक ही लाइन पे होगा। ये वेक्टर ले लो ए, ये वेक्टर ले लो बी, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, क्योंकि पता तो है आपको वेक्टर को मैं उठा के कैसे भी रख सकता हूँ, बस उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो बी वेक्टर को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे होने चाहिए। क्या अपोजिट वेक्टर कोलिनियर है? अगर मैं कोई वेक्टर ऐसे उल्टा निकाल दूं तो हाँ, वो भी कोलिनियर है। जो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है उसको कोलिनियर वेक्टर हम कहेंगे, सिंपल। इसकी और प्रिसाइज डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है जब वो एक लाइन पे रहेंगे। ठीक है, और भी कुछ डाउट है, स्पेशल डाउट है तो पूछ सकते हो इसके अलावा। एनी अदर डाउट, एनीवन अदर, कोई अगर है तो मुझको डाउट पूछो। ओके, लेट अस देन टर्मिनेट दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, रात में ही अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो। ओके, वो भी मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा सब। और देखते हैं, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। यस।